تھا. جی سر آیا تھا. آج ایک نئے ٹاپک کو ہم لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. جو پروسیسنگ ہم لوگ کراتے ہیں اس میں ایک چیز ہم لوگوں کو پڑھنی ہے، سٹز بات، آبزن. یہ آبزن اصل میں یونانی طریقہ علاج کا ایک بہت ہی قدیم طریقہ ہے. السلام علیکم سر. تو آج اس پہ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. اس کا استعمال ہم لوگ کہاں پہ کرتے ہیں پتہ نہیں، وہ شاید ایڈمٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں. تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا سٹز بات کے بارے میں. واٹ از سٹز بات اینڈ واٹ از دا پروسیس آف اٹ. سٹز بات از اے ٹیکنیک ان علاج بالتدبیر آف یونانی سسٹم آف ٹریٹمنٹ. سٹز بات کیا ہے؟ یہ ایک ایسا قدیم طریقہ ہے جس کا استعمال پہلے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب تو ماڈرن میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. خاص طور پر جو پرولیپس آف یوٹیرس کا جو کیسز ہوتا ہے اس میں، یا ویجائنل ایچنگ کے کیس میں اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اورل میڈیکیشن کے علاوہ. سٹز بات از اے ٹیکنیک، very old technique in Unani system of medicine. This is a warm and shallow bath that cleanses the perineum, which is a space between the rectum and vulva in female, and between the rectum and the scrotum in male. یعنی یہ جسم کا جو نچلا حصہ ہے، خاص طور پر وہ حصہ جو اعضائے تناسلیہ کا حلقہ ہے، خواہ وہ میل میں ہو یا فیمیل میں ہو. اگر یہ فیمیل میں ہے تو اس کا ایریا بتا دیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہو، یعنی ریکٹم اور والوا کے کا جو درمیانی حصہ ہے. اس طریقے سے جو میل ہے اس میل کے اندر یہ ریکٹم اور اسکارٹم کے درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ہم پرینیم ایریا کرتے ہیں، اس ایریا میں خاص طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں اس آبزن کا اسٹیم بات کا. تو اس اعضائے تناسلیہ کے اندر جو درد ہو یا اس کے اندر کسی بھی قسم کا التہابی کیفیت ہو، یعنی انفلامیٹری کنڈیشن ہو یا ایچنگ ہو، تو اس طرح کے کنڈیشن میں جو کمپلیکیشنز ہوتا ہے اس کے اندر ہم علاج تدبیر میں جو پروسیس سٹز بات کرنے کا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ یہ مشتمل ہے. خاص طور پہ جو اس کا استعمال کرتے ہیں وہ لیڈیز کے اندر، فیمیل کے اندر کرتے ہیں. اور یہ جو التہاب ہے اندام نہانی کا، جو والوا کا انفلامیشن ہوتا ہے یا پائلس ہے. ہلو ہلو یس سر. آواز نہیں پہنچی؟ جی سر آواز پہنچ رہی ہے سر. اچھا اچھا. تو یہ جو اندام نہانی کا جو التہابی کیفیت ہے، انفلامیٹری کنڈیشن ہے، یا پھر اس کو پائلس میں اس کا استعمال کرتے ہیں. جو ہیمورائڈ انٹرنل پائلس جو ہوتا ہے پائلس میں، اور جو خروج الرحم ہو، خروج الرحم یعنی پرولیپس آف یوٹیرس کے، جس کے اندر یوٹیرس جو ہے وہ ویجائنا سے تھوڑا باہر کی طرف نکل جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب اس وقت فیمیل اسٹول پاسنگ یا یورین پاسنگ کے وقت جو پریشر لگاتی ہیں، اس پریشر کے نتیجے میں جو یوٹیرس ہے وہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے. اس کو ڈگری سے، ماڈرن سائنس میں اس کو ڈگری سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری. تو ایک ڈگری جو انیشیل اسٹیج میں جب ہوتا ہے فرسٹ ڈگری وغیرہ میں، تو اس کے اندر ہم آبزن کے ذریعے سے اس انفلامیٹری کنڈیشن کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ ایکسرسائز وغیرہ کراتے ہیں. وہ ایکسرسائز خود پیشنٹ کو
किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर दो जानू जिस तरीके से हम लोग बाथरूम में बैठते हैं उस तरह से बैठने के बाद उसका हम बिल्कुल उल्टी गिनती उसको हम कहते हैं करने के लिए नहीं, बिल्कुल डिसेंडिंग उसमें ऑर्डर में हम कहते हैं कि आप पेशेंट को 1 से लेकर के 10 तक यानी 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से और थोड़ा वक्फे के साथ यानी कम से कम 40 सेकंड्स के अंदर एक डिजिट को हम काउंट करवाते हैं। तो इसके करने की वजह से होता यह है कि जो वहाँ पर ये खिंचाव पैदा होता है उसमें उस यूटेरस के अंदर जो जिसका लिगामेंट ढीला हो चुका होता है, ढीला हो जाता है। लेकिन अगर ये स्टेजेस इसके बढ़ गए यानी सेकंड में या थर्ड स्टेज में चला जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर वो सर्जिकल प्रोसेस हो जाता है, फिर उसकी सर्जरी ही करनी पड़ती है। फिर सीड्स बात से या फिर जो दूसरी मेडिसिन है यूनानी में सिर्फ इससे उसका काम नहीं चलेगा बल्कि वो सर्जिकल प्रोसेस पे चला जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, इल्तिहाब इंदाम नहानी में, पाइल्स में और खरूजुर रहम में ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक तो ये और ये करते कि इसको जो प्रोवाइड है ये जो करते हैं वो फॉर द रिलीफ फ्रॉम द पेन, इचिंग एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन द जेनिटल एरिया ऑफ द बॉडी, जो अभी मैंने बताया आपको। तो पहले जमाने में जब इसका इस्तेमाल होता था तो जो कदीम तरीका था वहाँ पे ये धात का बना हुआ एक किसी भी मेटल का बना हुआ एक बर्तन हुआ करता था जिसके जरिए से हम इस काम को करते थे और उसमें उस लिक्विड को जो जोशादा यानी डिकॉक्शन मेडिसिन का जो उसके अंदर अगर अकॉर्डिंग टू द डिजीज अगर इचिंग का केसेस है इचिंग है तो इचिंग के लिए जो दाफे खारिश जो अद्वियात है मफरद अद्वियात है उस दवा का वहाँ पे हम लोग डिकॉक्शन तैयार करते हैं और उसके अंदर उस पेशेंट को कहते हैं कि 15 to 20 मिनट्स उसमें वो बैठे, उस कपड़े को हटा करके निचले हिस्से के कपड़े को हटा करके उसमें बैठे और ये लगातार 14 डेज इस चीज को करवाते हैं उस पेशेंट के साथ। अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन का सिम्टम्स मिल रहा है और जनरली इन्फ्लामेशन तो पहले ही होता है, तो अगर इन्फ्लामेटरी तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन है मफरद अदिया की उसको रात में उस मेडिसिन को हम फुला देते हैं उसके अंदर जो खिसादे के अंदर पहले खिसादा तैयार करते हैं और फिर उसको हल्का ल्यूक वार्म करने के बाद जितना बॉडी टेम्परेचर उसका एक्सेप्ट कर सके उस पानी के टेम्परेचर को उतनी देर फिर उसको हम उसमें बैठाते हैं उस पेशेंट को। यस सर। सर कुछ लोग वेटिंग में अलाउ कर दीजिए सर। अच्छा कुछ लोग अपना म्यूट क्यों नहीं कर ले रहे हैं, आवाज आ रहा है इधर उधर से। वसीम के पास से आवाज आता है। म्यूट है सर, म्यूट किए हुए हैं, कैसे खींच ले रहा है? ऐसे म्यूट किए बोल रहे हो? कहाँ से म्यूट किए? तुम्हारा माइक ऑन है। भाई वो तो असल में पता नहीं, मुझे एडमिट करने के लिए एडमिट हो गए वो। हेलो जी सर, सब लोग हो गए। लेकिन ये जो चीज बता रहे थे ये जमाने कदीम में उस तरह का एक मखसूस बर्तन हुआ करता था, लेकिन अब इसको करने के लिए मार्केट्स में इस तरह का एक टब मिलता है जिसका नाम ही है सिड्स बाथ टब्स और कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। अभी अपने यहाँ पे तो कॉलेज में अवेलेबल नहीं है ये, लेकिन ये मार्केट में बहरहाल अवेलेबल है और बहुत आसानी से दस्तयाब है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ बात करने के लिए। ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस हो, लेकिन बहरहाल ये एक तरीका है जो फर्मेंटेशन का असल में, तो उसके अंदर की जो इंटरनल जो
है उसको हम सिकाई कैसे करें, वहाँ पर किस तरीके से उसको हम दूर करेंगे। तो उसके लिए इस ऑप्शन को यानी सीड्स बाथ का हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो करने का तरीका ये है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि उस सीड्स बाथ जो टब्स है उसको थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर यानी 2 चमची के लगभग उस ब्लीचिंग पाउडर और पानी से खूब अच्छी तरह से पहले उसको साफ कर लेते हैं। उसको साफ करने के बाद अब उसमें 3 से 4 इंच तक पानी हस्ब ज़रूरत, जितनी ज़रूरत हो, कम से कम अगर ज़रूरत है 5 लीटर की, वो तो अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ द टब देखा जाएगा कि उस टब में कितना पानी आना चाहिए, या फिर उस आदमी का देखा जाएगा कि वो आदमी को वहाँ पे बैठने में पानी उस हिस्से तक पहुँच जाए, ये पेशेंट उसको खुद देख ले। उस हिसाब से उसको एडवाइस करेंगे कि आप 5 लीटर पानी हस्ब ज़रूरत नीम गर्म ल्यूक वार्म वाटर उस टब में रखें। वहाँ पे उसको रखने के बाद जो पानी हो, पानी मीन्स ये है कि जो अदविया का पानी है। अगर हम सिंपल सीड्स बात कर रहे हैं, सिर्फ मेरा मकसद बिल्कुल एंटी इन्फ्लेमेटरी का है कि उसके लिए हम उसको करेंगे, सीड्स बात ही करेंगे, तो वैसे कंडीशन में हम नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। लेकिन जनरली जब सीड्स बात का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो दवा का जोशादा होता है, उस जोशादे को ही हम वहाँ पे रखते हैं, ताकि अद्वियाती फायदा भी हो जाए और पानी की गर्मी की वजह से जो फायदा पहुंचना है वो भी उसको पहुंच जाए। तीसरा तो पहला क्या करेंगे, उस सीड्स बाथ को ब्लीचिंग पाउडर और पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे फर्स्ट में। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट हो वाटर का उतना वाटर को या उस डिकॉक्शन को जो मतलूबा हो, जो नीड हो पेशेंट के डिजीज के अकॉर्डिंगली, उसको वहाँ पे नीम गर्म कर करके उसमें पेशेंट को हम बैठा देते हैं। और उसको जब बैठा लेंगे तो एक एवरेज जो उसको देते हैं, जो उसका 15 मिनट्स तक यानी 15 मिनट 20 मिनट जब तक के उस पानी की जो हिद्दत है, जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं हो जाए, उस वक्त तक उस पेशेंट को वहाँ पे बैठाते हैं। तो मुतासरा हिस्से के लिए खास तौर पे जो उसका अफेक्टेड पार्ट है, उस अफेक्टेड पार्ट के लिए। अब जब वो 15 मिनट या 20 मिनट का वो क्रॉस कर जाता है और पानी ठंडा होने लगता है, तब वैसे कंडीशन में फिर हम उस अपने जिस्म का जो निचला हिस्सा होता है या वो मुतासरा हिस्सा होता है, उस हिस्से को बिल्कुल साफ और ड्राई किसी भी कॉटन क्लॉथ से उसको साफ कर लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल 2-3 जगहों पे, एक तो मैंने बताया कि इल्तिहाब अंदाम नहानी के लिए करते हैं, खास तौर पे बवासीर केसेस में करते हैं, खुरूज रहम में यानी प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस में करते हैं, खारिश जो इचिंग कंडीशन होती है उसमें बहुत ज्यादा करते हैं, और जो वेजाइनल इचिंग होता है स्पेशली उसके अंदर भी करते हैं। और इसको विलादत के बाद, क्योंकि विलादत के बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस बवासीर का अगर ऑपरेशन हुआ हो तो उसका जो जख्म है उसके सूखने के बाद वैसे कंडीशन में जराहत बवासीर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चंद चीजों के कंडीशन में हम इसको न करेंगे, जैसे प्रीनियम इंफेक्शंस अगर है यानी उस हिस्से में किसी और तरह का ऐसा तादिया है, या सर्जिकल वुंड्स वहाँ पे है, अगर किसी किस्म का वहाँ पर जख्म इस तरीके का जो ड्राई नहीं है, तो उस कंडीशन में हम, चूंकि अब पानी से लगने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम पेशेंट का और बढ़ सकता है, तो वैसे कंडीशन में हम सीड्स बाथ का इस्तेमाल उस केसेस में नहीं करेंगे जो बिल्कुल न्यूली ऑपरेटेड केस है, बल्कि थोड़ा ड्राई होने देंगे, और अगर उसका पेन बाकी है तब वैसे कंडीशन में इसको करेंगे। ये सर कुछ लोग और वेटिंग में, उसको अलाउ कर दीजिए।
हेलो, हो गया? जी सर। तो असल में ये कुछ बहुत छोटा छोटा प्रोसेसिंग है जो सिलेबस में यहाँ पे है, जो मैंने बताया ऑप्शन है या सीड्स बात उसको कहते हैं, या पाशोया है, फुट बात है, गार्डगेल है, वेपोराइजेशन है। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है जैसे हिजामा और वेनिसेक्शन वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं या लीचिंग को पढ़ा हम लोगों ने, तो ये बहुत डिटेल उसको पढ़ना है और बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको बहरहाल सिलेबस में रख लिया गया है और इसका ताल्लुक कहीं न कहीं तिब्ब यूनानी से है, तो इसको गालिबन इस मसलहत से इसमें डाला गया है कि इसका तो इस्तेमाल किया ही जाता है। अभी जो चीज मैंने बताई आपको वो आब्जन के सिलसिले में था, जिसको सिड्स बात कहते हैं। इसी तरीके का एक दूसरा जो अभी अगर वक्त हो तो हम जरा एक आध दो और बता दें इसमें, जो और जो छोटा छोटा प्रोसेसिंग है। जी सर। जी, तो एक है गरारा, गार्गल। एकदम छोटा सा प्रोसेस है, एकदम जनरल, बहुत कॉमन,